Good morning, students. Uh, Today I'm going to start with with 1 hour on this topic, engineering drawing. Today's I will be giving my lectures on engineering drawing. So, drawing, as you know it, you must have heard about this word, the drawing. You are making the drawing since you are born. जब से आप पैदा हुए हैं तब से आप drawings बना रहे हैं. So drawing is something which you can define, which you made with some pencils, pen, or crayon. Something which you make with certain holders, with certain pens and the pencils. The only thing is that you don't use any paints for it. So that's a drawing, you make a drawing. Okay, since I've told you that you're making the drawing since your birth, but the drawing, as you can just see, it has evolved. It has evolved a lot. तो जैसे आपको ऊपर वाली फिगर में दिखाई दे रहा है, since you were when you were a kid, 2 years of age, you're making the drawings of something of these shapes, means you're making any random shapes. But as you grew old, you're making certain shapes. कुछ shapes आप बना रहे थे. And with the age, as you grow into the age, you're making certain shapes जो आपके आसपास कुछ दिखाई दे रहा था तुम्हें. कुछ उस तरह की तुमने कुछ शेप्स बनानी शुरू कर दी. Okay, because why these changes in the drawings was there, because जो आपके हाथ का जो grip था, when you holding your pens or your pencils, it was changing. So initially you were holding a pen more of like a grip, जैसे आप किसी चीज को आप हाथ में पकड़ते हैं. So it was something like this in your pencil. This we call as your cylindrical grip. So you're holding a thing in a fist. एक पूरी तरह से आप चीज को, जैसे जब बच्चा शुरू में पैदा होता है, it's holding a things in a fist sort of a thing. So and then as your age grows, you're taking a pencil in certain एक अलग तरह से आप उसको hold करते हैं. So you're just making the pencils, or around 7 to 8 years की जब आप age के अंदर आते हैं, you have a finally shape of a pencil. Means exact shape when you are holding a pencil. So those are the evolution on the drawings, जो drawings अब तक आप बनाते रहे हैं. तो but the drawings के साथ there is one typical thing about the drawing is that it is interpreted differently by different peoples. जैसे अगर आप if you just see the middle drawings, अगर आप middle वाली अगर drawings देखेंगे आप, you can make many of things out of it. ये देखने में कैसा लग रहा है? It's some circular shapes हैं, कुछ slant shapes हैं. It's something looking like a किसी चीज का, जैसे maybe a chick sort of a thing it looks like. और जो next वाली figure drawings हैं, something looking like an human face, or it could be a robot sort of a thing. तो हर एक बच्चा या हर इंसान जो है हर drawing को देख के, it's making a different type of a thing. So here the difference comes into the engineering drawing things. In the engineering drawing, we want that it should always be same for all the people. मतलब अगर कोई भी उस drawing को देखे तो सभी कोई एक ही चीज को बताए. So it should be unambiguous. Means it should be unambiguous, meaning that you should have only a single meaning out of it. अगर कोई उस engineering drawing को अगर कोई देखे, सबको एक ही जैसी चीजें लगे, और it should be easy to understand. It should not be so much of a tough कि आपको drawing देख के आपको किसी की help लेनी पड़े या कुछ और दिक्कत आ जाए. तो किसी और की help ना लेनी पड़े और वो देखने में आसान हो. So the only thing is that उसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? You should have certain symbols and the principles which are standardized, जो पूरे world over के अंदर एक standard symbols हो, ताकि उस drawing को, engineering drawing को अगर कोई भी देखे, सबको एक ही जैसी चीज लगे. जैसे आपको अगर ये फिगर आपको दिखाई दे रही है, this is the plane made by the Wright brothers. It was the first plane which was made by the Wright brothers, and so they have patented it. उन्होंने इसका पेटेंट लिया था, पर वो पेटेंट उनको तभी मिला when they have made a engineering drawing for it. If you just see the below figure, it has, this is the engineering drawing of this plane, the first plane which was made.
सो इसी ड्राइंग के कारण ही जो आजकल के जो प्लेन्स हैं विच वी आर सीइंग टू इट, this those planes come into the picture. Those could be really made. So this is the power of an engineering drawing. Fine. और बाकी जैसे जो चीजें हैं, if you could just see these three figures which I have shown to you, these are the figures which are well known. Just like there is a Airbus is there, there is Burj Khalifa is there, some electronics parts are there. But if you just see, it's impossible to communicate these figures just by writing about them or verbally telling about them. Means, अगर आप इनके बारे में कुछ बताना चाहें इन तीनों figures के बारे में, it's not possible just to tell them by verbally or just by saying this is an Airbus, this is the Burj Khalifa, or this is the some electronic circuits. So how could you tell about them? You can tell only about them when you have the detailed things about them, details drawings about them. So means all the things engineering point of view is required by all the streams. This is required by all the different streams of engineering. Fine. So it's engineering drawing is nothing. जैसे कुछ लोगों को ये दिमाग में होता है कि engineering drawing is basically used by the mechanical engineers or the civil engineers. This is not so. This is not so. This is engineering drawing is one area which is used by all streams of engineering, and it has to be learned. This is not something कि आपको बस अपने आप आ जाएगा. It has to be learned because it involves certain standards, certain symbols, certain conventions. तो आज हम कोशिश करेंगे कि 1 घंटे में आपको मैं थोड़ा सा इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में if I could tell you about the different facets of the engineering drawing, so you can have more interest जो आपके इस सेमेस्टर या अगले सेमेस्टर में जो आपके ड्राइंग्स आएंगी. सो यू कैन लर्न द डिफरेंट थिंग्स. तो जैसे अगर आप इन ड्राइंग को जब आप समझेंगे उसके जो स्ट्रक्चर्स है, देन आप किसी भी चीज को अगर आप देखेंगे यू विल हैव एन गुड इंजीनियरिंग आइडिया. यू हैव द इंजीनियरिंग आइडिया, इंजीनियरिंग बेसिस टू इट कि हाउ टू यू सी द वेरियस थिंग्स फ्रॉम द इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यूज. Okay, so I'm again repeating it. So drawing is something, it's this simple, any graphical representation of any objects. But engineering drawing is something which have the actual shapes with the accurate sizes, with different manufacturing methods, how to make those things. All those things are made inside the engineering drawings. So without any constructions, एनी मैन्युफैक्चरिंग, जो भी आप मैन मेड चीजें अपने आसपास जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है उसकी कंस्ट्रक्शंस, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, इट्स नॉट पॉसिबल without the help of any engineering drawings. So that's why this is so much important to learn how to make the engineering drawings. So engineering drawings could be done in the two ways. It could be done by the manual ways with the help of pencils and the pens, or another is we call as your computer aided designing with the help of the computers. Now because the computers are all around you, आपके पास phones भी हैं, computers भी हैं, so it has impacted a lot. तो जो drawing के जो तरीके हैं जो पहले से चले आ रहे थे, it has impacted a lot onto the making of a drawing. How do you make a drawings on it? With the help of the computers you can make drawings in very small times. In very small times are very less, the drawings are getting very cheaper, but still we are going to use the manual drawings. हम फिर भी हम manual तरीके से हम pens, pencils, papers का इस्तेमाल करते हैं drawings बनाने के लिए. क्यों इस्तेमाल करते हैं? Because क्योंकि ये जो तरीका है drawings बनाने का, ये कंप्यूटर से आप डायरेक्ट सीख नहीं सकते हैं. This is why, because जैसे कि आप कैलकुलेटर्स का आपने इस्तेमाल किया होगा, you don't use the calculators on a single day. ऐसा नहीं है कि बच्चे को शुरुआत में ही कैलकुलेटर दिए जाते हैं. Why? Because you have to learn the mathematics. Until unless you know the numbers, multiplications, division, जब तो आपको वो नहीं आएंगे, you can't use the calculators. Similar is the case with the computer aided designing. आप कंप्यूटर पे आप जब भी कोई डिजाइन बनाएंगे, ड्राइंग्स बनाएंगे, until unless you have the manual feel of it, until unless you know how to draw the lines, how to draw the whole structures, कैसे बनाया जाए, you can't use the computer softwares to make a drawing. So इसीलिए
we are going to always use the manual methods. We are going to always use the manual methods. तो manual methods के अंदर हम क्या इस्तेमाल करते हैं ड्राइंग्स बनाने के लिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स बनाने के लिए? So this is the one instruments, the most important instruments you're going to see in your semesters to make a drawings. So this we call as your drafter, or you call is to be a mini drafters. This is the mini drafters. This whole setup, smaller, अभी थोड़ा डिटेल में बताऊंगा आपको इसके बारे में. This is fixed upon to the drawing boards. This is fixed on a drawing boards. So this is the most important instrument which you're going to use in making of your engineering drawings. If I'm going to detail onto this drafter things, you just see it has the scales, the two perpendicular scales are there with certain knob. The two scales are attached to a knob, and the knob is we call as it's a protector head, and it is attached with the pivotal plate and certain with the clamp assembly. And this clamp assembly is, if you just see the clamp and the clamping screw, these are the screws which are going to attach with this wooden drawing boards. This is the wooden drawing board. It is made at certain angle to it. If you just see, it has certain angle, so that you can stand in ahead of it and you can make the drawings standing towards. So this is proper one instrument which you are going to use for making up of a drawings. Okay, इसको आपने clamp कैसे करना है? If you just see to it, it's a very simple instrument. कोई इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है कि आपको इसको कुछ टाइम लगे सीखने में या कुछ बनाने में. But the only thing is that when you just fix onto the board, it requires certain things. So if you have to put the clamping board, the drafting boards onto the left side of a board, and then you have to fix in certain way कि ये जो आपका जो दो scales हैं, they are properly aligned with your bottom lines, with the bottom line with the attached, so that the things are particularly perpendicular with the it is parallel and perpendicular to your drawings board. You have to look for the indexing zero angle. Indexing zero angle means कि आपका जो नीचे वाली जो line है, it is always horizontal, और उसके साथ आपने इसको अलाइन करना है, and then the line should be very straight one. जितना भी आप बनाएंगे, it will be aligned with certain bottom angles. Okay, तो इसको आपने बनाना कैसे है? इसको ड्राफ्टर को आप लगाने के बाद you will put your drawing sheets below your drafter. जैसे ये आपकी जो ड्राफ्टर है, इसके नीचे if you just see it is the drawing sheet is clamped at the four edges. If you just see, it is a four edges. उसके पीछे आपने drawing sheet को आपने लगा रखा है. Okay, these are the certain instruments which you will also require. कुछ तो आपने देखे हुए हैं, आपने पहले आपने कुछ जिन्होंने drawings वगैरह की हुई हैं. These are the protectors हैं हमारे पास. There are certain C shapes are there which you are going to use it. Certain clamping boards are there. So you have to put the sheets to it. Okay, this is one layout of the drawing sheets. If you just see to it, इसके ऊपर अभी ड्राफ्टर नहीं है. ड्राफ्टर को आपको हटा के मैं दिखा रहा हूं कि this is the one sheet which you are going to use to it. इसमें आपको कुछ चीजें आपको दिखाई दे रही हैं. There is some border to it is there. If you just see, there is a filing margin is there. There is some lengths to it. So these are the lengths which we give
Okay, sorry for certain delay for it. Okay, so this is something which you just see onto the screen is how you place your sheet प्लेस करने के बाद आपने उसके ऊपर कुछ लाइंस को आपने ड्रॉ करना है. तो यू जस्ट सी दिस इज द ट्रिम्ड एज इज समथिंग जो आप व्हाइट शीट जो आप लगाएंगे उसके ऊपर वो उसकी एक एज है. ओके, देन देयर इज बॉर्डर टू इट कि सबसे पहला काम आपने यही करना है कि अपनी शीट के ऊपर आपने एक बॉर्डर बनाना है. ओके, सो दिस इज सर्टेन इंडिकेशन. सो बॉर्डर इज योर इंडिकेशन कि आपकी जो ड्राइंग्स होगी वो इस बॉर्डर के अंदर रहेगी. फाइन, वो इस बॉर्डर के अंदर रहेगी. और उसके बाद आपने कुछ और चीजें भी अंदर बनानी है. जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है जो आप सबसे पहले बनाएंगे बॉर्डर बनाने के बाद वो होगा आपका टाइटल ब्लॉक. ओके, टाइटल ब्लॉक इज समथिंग, टाइटल ब्लॉक इज समथिंग विच यू गिव some informations to it कि आपकी वो ड्राइंग क्या है और किस चीज की ड्राइंग है, आप उसके अंदर क्या कहना क्या चाह रहे हैं. ऑल दीज थिंग्स यू विल मेक इनटू द टाइटल ब्लॉक. सो टाइटल ब्लॉक में आपको क्या दिखाई देगा? दिस इज द टाइटल बॉक्स इन विच यू विल मेक द you will just write your name of the institutes, you will just write the title of the drawings, स्केलिंग आप कितने स्केल के ऊपर अपने ड्राइंग्स बना रहे हैं, आपका नाम, रोल नंबर, किसने आपका जो टीचर है उसने आपको उसको इवेलुएट किया हुआ है. Okay, the next thing is your important thing is your pencils. So there are large type of pencils which you're going to use it. The most important two types of pencil which you're going to use is your 2H, H and the HB. 2H से आप उसकी रफ ड्राइंग्स बनाएंगे, आप अपनी हल्की ड्राइंग्स बनाएंगे. और H और HB जो पेंसिल्स होंगी उसके साथ आप लास्ट में अपनी ड्राइंग्स का फाइनल आप बनाएंगे. Okay, these are the different type of pencils which you can always see into the markets. जितना ज़्यादा आपकी बीज बढ़ते जाते हैं, your middle portion it will grows to it. Now you have the different type of lines जो आप पेंसिल से आप बनाएंगे. जैसे आपकी thick lines हैं, continuous lines हैं, continuous thin wavy lines हैं, zigzag lines हैं, short dashes वाली lines हैं. So उन सब अलग अलग तरह की लाइंस के लिए आप अलग अलग ग्रेड्स का इस्तेमाल करेंगे. जैसे मैंने आपको बताया नॉर्मली आप H2H पेंसिल्स का इस्तेमाल करेंगे. जो थिक लाइंस हैं वो आपकी आउटसाइड लाइंस होंगी जो ड्राइंग्स के अंदर आप बनाएंगे. और भी कई तरह की लाइंस आएंगी, आपकी डैशेस बनेंगी, आपकी चेन टाइप्स लाइन बनेंगी. यू विल ऑल यूज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन. जैसे ये जो आपकी ड्राइंग्स आपको दिखाई दे रही हैं, इफ यू जस्ट सी द डिफरेंट एप्लीकेशंस, जैसे आपको एक बीच में आपको मैं दिखा देता हूं, जैसे डायमेंशंस लाइंस हैं. सो दीज आर मेक विद द थिक लाइंस. जो आपकी हिडन लाइंस हैं जो अंदर बनती हैं, those are made with the thin lines. Okay, these are again जैसे short break lines आप बनाएंगे, long breaks lines आप बनाएंगे, stitch lines आप बनाएंगे. different types of ski lines, अलग अलग तरह की जो objects हैं, कुछ objects में कुछ चीजें अंदर छिपी हुई होती हैं, उनके लिए आप hidden lines बनाएंगे. जो dotted lines बनाएंगे, center lines जैसे आपकी जो cylindrical shapes होंगी उसके लिए आप dash and dots lines बनाएंगे. So और ये जैसे एक कंप्लीट एक ड्राइंग्स है जो आपको मैं कंप्लीट दिखा रहा हूं. इफ यू जस्ट सी जैसे ये जो लाइन है, दिस इज थिक लाइन, दिस इज थिक लाइंस यू मेकिंग विद देन HB लाइंस. और देयर आर सर्टेन सेंटर लाइंस, स्मॉल लाइंस विच यू गोइंग टू विद द H लाइंस. और जैसे ये एक और लाइंस दोबारा दिखा रहा हूं, दिस इज द हार्डर लाइंस, द आउटसाइड लाइंस, यू गोइंग टू यूज द H लाइंस. जो आपकी डॉटेड लाइंस हैं, जो हिडन लाइंस हैं, जो स्केचिंग लाइंस हैं, आपने जहां पर कट पोर्शन दिखा रखे हैं, यू गोइंग टू यूज द H लाइंस और द 2H पेंसिल्स टू इट. ये एक हल्का सा आपको एग्जांपल देता हूं कि जो बच्चे ज्यादातर बनाते टाइम गलतियां क्या करते हैं. जैसे आपकी जो लेफ्ट साइड वाली जो लाइंस हैं, दीज आर द करेक्ट ड्राइंग्स. बच्चे क्या करते हैं, एक लाइंस को स्ट्रेट लाइंस नहीं बनाते हैं, उसको हल्का सा शुरू करेंगे, फिर रुक जाएंगे, फिर आगे बनाएंगे, फिर वो लाइंस ओवरलैप्स करती हैं. कॉर्नर्स जो लाइंस होती हैं, दोज आर नॉट शार्प कॉर्नर्स. जैसे आप ये लाइन थोड़ा ऊपर चले गए, हल्का सा इधर चले गए, इस तरह से आपने नहीं करना है. जैसे नीचे आपने जो आर्क्स बना रखे, देख रहे हो आर्क्स एक स्ट्रेट लाइंस है. आपको जैसे जो राइट वाली फिगर में आपको पता चल रहा है कि आपने बीच में एक आर्क बना रखी है और फिर लाइंस को जोड़ रखा है. ऐसे कभी भी नहीं करना आपने. सब लाइंस आपकी स्ट्रेट्स बनेंगी, स्ट्रेट शुरू हुई और पूरा लाइन आपकी खत्म हो गई. और एक ये तो होगी लाइंस की बात. एक जो नेक्स्ट पोर्शन होता है वो हमारा आता है लेटरिंग का.
आप नंबर्स लेटर्स आप जैसे लिखेंगे, अल्फाबेट जो लिखेंगे, आप नंबर्स लिखेंगे 1 2 3 4 ABCD जो आप लिखेंगे, उसके अंदर आप अलग अलग तरीके से लिखेंगे। लेकिन सबसे मेन चीज आपको ध्यान रखना है कि आपने कोई भी उसमें ऑर्नामेंटल, जैसे आपने इटैलिक्स की फॉर्म्स में आपने नहीं लिखना है। इट शुड बी स्ट्रेट लाइंस, लेजिबल लाइन, सब कुछ स्ट्रेट होना चाहिए। जैसे आपकी ये लाइंस हैं, दीज आर द लाइंस। और लेटर्स भी आपने नंबर के साथ अलग अलग करने हैं। जैसे अगर आपने बड़ा नाम लिखना है, कंपनी का नाम लिखना है, तो सबसे बड़ा साइज रहेगा 10 mm के ऊपर रहेगा। उस तरह से आप नीचे आप उसको छोटा करते चलेंगे अलग अलग तरीके से। अच्छा, ड्राइंग्स के अंदर इसीलिए जैसे आपको शुरू में बताया, यू हैव सर्टेन कन्वेंशंस एंड स्टैंडर्ड्स। कन्वेंशंस मतलब कुछ चीजों को हम बनाते आ रहे हैं शुरू से। जैसे जैसे हमारी जो हिडन लाइंस हैं, जो चीजें हमारी एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो हिडन है, उसको हमेशा हम डॉटेड लाइन से बनाएंगे। ओके, तो ये चीजें जो हैं कुछ तरह की ये हैं। और कुछ हमारे स्टैंडर्ड्स होते हैं जो फिक्स रहेंगे। मतलब जैसे आपने डायमेंशंस हैं, डायमेंशंस को आप, कुछ चीजों को आप डायमेंशंस को बीच में लिखेंगे, कुछ आगे लिखेंगे। कुछ चीजें हमारी फिक्स रहेंगी जो हम ड्राइंग्स के अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो वो फिक्स आपने स्टैंडर्ड्स, अब आप पूछेंगे कैसे कैसे करना है, तो ये अलग अलग देशों में कुछ कुछ चीजें हल्की हल्की अलग अलग रहती हैं। लेकिन जैसे हम हमेशा ANSI का सॉल्यूशंस का ही इस्तेमाल करेंगे, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, जो हम ड्राइंग्स बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। और यूनिट्स, वैसे आपको मालूम है कि SI यूनिट्स में लेंथ के यूनिट्स होते हैं मीटर्स, लेकिन हम अपनी ड्राइंग्स में हमेशा MM का इस्तेमाल करेंगे, मिलीमीटर्स का। और बार बार हम हर हर ऑब्जेक्ट के साथ हम MM नहीं लिखेंगे। सो वी विल ऑलवेज राइट इनटू द, जो हमने शुरू में टाइटल बॉक्स देखा था, उसमें हम हमेशा लिखेंगे कि ऑल द डायमेंशंस आर इन द MM। और ये कुछ एक ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं जो हम बार बार इस्तेमाल करेंगे अपनी ड्राइंग्स के अंदर। तो जैसे नॉर्मल सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली शेप है, दैट्स वी कॉल एज योर प्रिज्म शेप, जो नीचे से ऊपर से लेके एक रेक्टेंगुलर शेप के अंदर बनती है। और इसकी हम 3 तरह की डायमेंशंस देंगे, हम अलग अलग व्यूज के अंदर देंगे। प्रिज्म इंपॉर्टेंट है। सिलेंड्रिकल शेप्स हैं हमारी, जिसके अंदर उसका हम डायमीटर देंगे, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यूज को हम देंगे। कोन है, जिसके अंदर हम 2 तरह की डायमेंशंस देंगे, हम इसका डायमीटर देंगे और इसकी एल्टीट्यूड्स या हम इसकी हाइट की डायमेंशंस हम देंगे। आपके पिरामिड्स हैं, जो 3 तरह की हमारी जो डायमेंशंस का इस्तेमाल करेंगे, योर बेस एंड योर एल्टीट्यूड्स आर देयर। ओके, तो जैसे आपको बताया मैंने, शेप्स हमारी कई तरह की शेप्स होंगी। लेट्स मी, थोड़ा मैं थोड़ा फास्ट चला गया था। इफ यू जस्ट सी, we have the different shapes. You have the squares, you have the rectangles, rhombus, rhomboids, trapezoids, trapeziums. Then you have the pentagons. In fact, the shapes are, if you just observe it, shapes are of 2 types. One is your 2-dimensional shapes, and other is your 3-dimensional shapes. And the 2-dimensional shapes are from by from the lines, the angles. You're going to use the lines, angles to make the 2-dimensional shapes. And once you have mastered the 2-dimensional shapes, you can make the 3-dimensional shapes. अब आप ये पूछेंगे कि three dimensional shapes जो हैं, those can't be made onto the paper. So you make the isometric views of different drawings. So we'll just see in your courses how do you make the isometric views. If you just see into the bottom portion of these drawings, if you just see the bottom portion of the drawings, these are the isometric views. So you have a feeling of that, you can just have the feelings that these are the these are the 3-dimensional views.
Okay, I've taken a small break to it because I want that you should see this drawing very clearly. If you just see this drawing as told you, these are all the shapes जो हम इस semester course में हम जो बनाएंगे बार बार, these are the mainly these are the shapes. इन्हीं shapes को हम अलग अलग बनाएंगे या अलग अलग इस्तेमाल करके इनको कंबाइन करके हम एक एक जो एक रियल ऑब्जेक्ट्स जो होती हैं हमारी, जो रियल लाइफ में जो ऑब्जेक्ट्स होंगी उनको हम बनाएंगे. सो सबसे पहले जो हम ड्राइंग में शुरू करेंगे, हम लाइन से बनाना शुरू करेंगे, एंगल्स बनेंगे हमारे, और फिर हम लाइंस एंगल्स बनाने के बाद उनको हम ज्वाइन करके ज्योमेट्रिकल शेप्स बनाएंगे. ज्योमेट्रिकल शेप्स के अंदर जैसे आपका ट्राइंगल्स हैं, अलग अलग तरह के ट्राइंगल्स आएंगे आपके, आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आएंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आएंगे आपके, ऑक्टेन्स आएंगी, स्क्वेयर्स बनेंगे, रेक्टेंगल्स बनेंगे, जो मुझे लगता है काफी सारे स्टूडेंट्स को आता है बनाना, विच यू आर फेमिलियर विद इट. So the typical shapes will start from your hexagon, pentagon, जो normally students के अंदर students ने plus 2 तक नहीं बना रखी होती हैं. तो उसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? You need to know the various angles, the inside angles of the pentagon, hexagon, heptagon, octagon, nanogon. इनके आपको angles मालूम होने चाहिए. How many internal angles are there? Included angles are there. Once you know about each and everything, these shapes are damn easy. बहुत ज्यादा आसान है इनको बनाना. तो इस तरह से आप शुरुआत करेंगे. तो बेसिक शेप्स के अंदर तो आई एम गिविंग यू सर्टन स्मॉल कुछ दो तीन फिगर्स के बारे में आपको मैं बताऊंगा. जैसे सबसे जो कॉमनली यूज फिगर है, दैट्स योर प्रिज्म. प्रिज्म इज समथिंग जिसका कि टॉप और बॉटम जो शेप रहेगी वो दोनों सेम रहेंगी. और जैसे आपको ये फिगर दिख रही होगी, सो दिस इज द फिगर्स. अब आपको लग रहा होगा प्रिज्म देखने में नहीं लग रहा, बिकॉज दीज आर द टू व्यूज. वन इज योर टॉप व्यू, हम ऊपर से प्रिज्म को जैसे देखते हैं, और हम साइड से प्रिज्म को हम जैसे हम देखते हैं. सो दीज टू व्यूज, you show 2 or 3 views, more views, just to make a object clear. Then the next shape, the next mainly used shape is your cylindrical shapes, in which you give the diametricals and the length of that cylinder to make a cylinder objects. Then you have the conical shapes. Cone shapes में बनाने के लिए you need 2 dimensions. You need the 2 dimensions. One is your diameter, another is your altitude. So these are the 2 dimensions which you require for making up of a cone. Then another shape we call as your pyramids. Pyramids are something which have the different shape at the top than at the bottom one. So it goes, it's something goes into a conical type of a shape. In this you require 3 dimensions to make this whole shape of the pyramid shape. Then you have the spheres, which requires only a 1 dimensions. That's the diameter. If you know a diameter, you can make a spherical shape. Then the other things of the other thing of engineering drawing is your dimensioning. So dimensioning is one in which you specify an object. When you just say the size of an object, the construction features of an object, the various the main things. मतलब आप dimensioning एक वो चीज है when you tell each and everything about an object, starting from the lines, numbers, symbols, you just display each and everything. मतलब dimensioning को देखने के बाद any person could make out कि how much big an object is, कि वो बड़ा कितना है, और उसको बनाने के लिए चीजें हमने क्या क्या इस्तेमाल करी हैं, उसकी इंस्पेक्शन जब की जाएगी तो हमें क्या क्या चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी. ऑल दीज थिंग्स आर गिवन इनटू द डायमेंशनिंग. तो वो हम इस तरह से कुछ डायमेंशनिंग को हम दिखाते हैं. सो बेसिकली एज आई टोल्ड यू, डायमेंशनिंग इज गिवन टू फाइंड आउट इट्स शेप, इट्स साइज एंड इट्स लोकेशन. मतलब
कि जैसे if you just see this is one thing there is written as S, S and P. These are the sizes. These are the sizes कि how much big the object is. Then another is your location. If you just see this is S drill, 2 holes are there, meaning it shows the holes, the location of the holes, the where the holes are located in that object. उस पूरी objects के अंदर वो आपके जो holes हैं वो कहां पर हैं. So these two things are given by the help of the dimensioning. So इसमें भी स्टूडेंट्स जो कई बार गलती क्या करते हैं, जैसे आपने एक ड्राइंग्स बना ली, देन दे विल जस्ट इन हरिडली, जैसे जो लास्ट वाला जो सी पोर्शन है, सो दिस इज द वर्स्ट थिंग दे डू इन द डायमेंशनिंग. मीनिंग हर एक किसी की एक ये आदत सी, एक टेंडेंसी सी रहती है कि ऑब्जेक्ट बना दिया, उसके बीच में वो डायमेंशनिंग को इस तरह से हम लिख देते हैं. सो यू डोंट हैव टू डू इट. कभी भी आप नंबर्स बीच में नहीं लिखेंगे. ओके फाइन. अगर लिखना भी पड़ जाए, अगर आपकी शेप इतनी कॉम्प्लेक्स है, देन इफ यू जस्ट सी द B1, अगर आप बी के अंदर लिखते हैं तो मींस आपके अंदर जो कुछ भी है, यू हैव टू रिमूव द एवरीथिंग इनसाइड द ड्राइंग. देन यू कैन राइट द एनी नंबर्स, एनी लेटर्स टू इट. एंड द बेस्ट इज द विच इज ऑलवेज फॉलो. जैसे आपने डायमेंशनिंग करनी है, मतलब आपने नंबर्स जो लिखने हैं, यू विल राइट आउटसाइड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, यू हैव टू आउटसाइड ऑफ एनी ड्राइंग्स. ओके, उसमें भी कुछ तरीके होते हैं. जैसे अब आप कुछ लाइंस, एक्सटेंशन लाइंस लगाएंगे, आप यू विल हैव सर्टेन गैप्स, आप कुछ गैप्स को रखेंगे, एंड देन यू राइट द नंबर्स और द लेटर्स इनसाइड द 2 एरोज. इन 2 एरोज के बीच में आप अपने नंबर्स को आप डिफाइन करेंगे. ओके, सो इस तरह से अगर आप इसको डिफाइन करेंगे, ओके, और इसके अंदर क्या है, आपका एक एरो भी है. अगर if I can just show you a main drawings, you just wait. Okay, this is the one complete drawing जो ये मैंने बीच में बनाई हुई थी एक बारी. If you just see, so this is one complete drawing. इस तरह से आपकी देखने की एक complete drawing जब आपकी पूरी बन जाएगी, it will something look like this. तो इसमें आप देख रहे हैं कि सबसे पहले आप शुरुआत कैसे करेंगे. यू विल मेक द लाइंस, जो भी आपकी ज्योमेट्रिकल शेप है. जैसे कि ये एक स्क्वायर बना हुआ है. ओके, एक स्क्वायर शेप है, अंदर बीच में सर्कल्स बने हुए हैं. ओके, बीच में आपकी हैचिंग भी कर रखी है. हैचिंग मतलब इसमें कुछ एक ऐसी चीज होगी कि जो अंदर छिपी हुई है, विच यू कांट शो इट. सो दीज लाइंस, अगर आप ये जो स्लांट लाइन देख रहे हैं, इट मींस, इट शोज, इट सेज कि इसके पूरे ऑब्जेक्ट में कोई ऐसी चीज थी जिसको दिखाने के लिए हमें उसको कट करना पड़ा. अब दिस कट मैकेनिज्म इज कुड बी ओनली शोन विद द हेल्प ऑफ दीज लाइंस. ओके, सो मींस एवरी ड्राइंग हैज सर्टेन डिफरेंट एस्पेक्ट्स. सो आपको वो सीखना पड़ेगा. इट विल कम बाय प्रैक्टिस. वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा. जैसे अगर आपको इसमें और दिख रहा होगा, इफ यू जस्ट सी दिस लाइन, एक ये लाइन आपको दिख रही है, ये वाली, दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन. इसके बीच में अगर आप देखें, दिस इज सर्टेन लॉन्ग डैश, स्मॉल डैश, लॉन्ग डैश, स्मॉल डैश. सो इट सेज दैट दिस इज ए सर्टेन सिलेंड्रिकल शेप. ये एक सिलेंड्रिकल, कुछ बीच में एक ट्यूब की तरह कोई चीज है, और ये उसकी सेंटर लाइन है. दिस लॉन्ग डैश, स्मॉल डैश, लॉन्ग डैश, स्मॉल डैश इज सर्टेन, दिस इज सर्टेन ए सेंटर लाइन. एक सिलेंड्रिकल शेप के बीच में एक सिलेंड्रिकल लाइन है. ओके, सो ऑल दीज थिंग्स, डिफरेंट थिंग्स, इफ यू जस्ट सी, जो आपको अभी मैं डायमेंशनिंग की जो मैं बात कर रहा था, इफ यू जस्ट सी, ऑल दीज डायमेंशन लाइंस आर आउटसाइड ऑफ द मेन ड्राइंग्स. ये इस ड्राइंग के बाहर की तरफ है. मीनिंग कि ये इसलिए है कि ताकि आपको बीच में कोई कंफ्यूजन किसी को ना रहे. ऑल द लाइंस आर मेड, ऑल द डायमेंशन लाइंस आर मेड आउटसाइड ऑफ योर ड्राइंग्स. नाउ दीज आर ऑल मेड विद certain arrowheads. If you just see, it has certain arrowheads and it has certain symbols to it. If you just see, it has certain symbols. This is I don't know, this is not clearly visible. If you just see, it is not clearly visible. This is something we call as your phi. अगर सभी को अगर phi की shape का मालूम है, if I could draw the phi shape, if you just see something like this. So, oh, sorry, it's something कुछ गलत हो गया ये. If you just see, this something like this.
समथिंग 5 सिंबल इज देयर। तो ये सिंबल कुछ इस तरह का मैंने यहां पर बनाया हुआ है। सो दिस शोज दैट दिस इज द डायमीटर ऑफ दैट होल। जो भी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई होल बना हुआ है, ये उसका डायमीटर है। सो दिस इज द डायमीटर, सेइंग इट इज ऑफ 30 into 25. This is of 30 mm, 30 mm diameter. This hole is there, and this 25 mm deep. It is going inside. Hole जो है वो अंदर की तरफ जा रहा है. Okay, and it is नीचे लिखा हुआ है 2 places, meaning that it is on the 2 places. This is the one, ये एक है और ये हमारा सेकंड है। सो यानी कि जो इस तरह की जो शेप है हमारी, जो ये जो शेप है, इस तरह की जो शेप है, ये 2 जगह पर है। इस पूरी जो ड्राइंग के अंदर 2 जगह ये बना हुआ है। वो 30 mm का डायमीटर है, 25 mm का वो डीप है, और इट इज ऑन द 2 प्लेसेस। ये यहां पर भी है, यहां पर भी है, और एक यहां पर, मतलब दिस इज एट दिस पॉइंट एंड दिस इज एट दिस पॉइंट। सो इट क्लियरली शोज दिस इज एट 2 प्लेसेस। और अगर आप ध्यान से देखें इस ड्राइंग्स के अंदर, इफ यू जस्ट सी, इट इज रिटन एज THRU। सो दिस थ्रू मीन्स दिस होल इज कंप्लीटली थ्रू। सो इफ यू जस्ट ऑब्जर्व इट, सर्टेन होल्स, कई बार जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिसके कभी देखा होगा आपने, कोई ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर हमने कुछ नट एंड बोल्ट्स होते हैं। सो कुछ नट एंड बोल्ट्स तो सिर्फ कुछ तक रहते हैं उस ऑब्जेक्ट्स के अंदर, और कुछ होल जो है पूरे थ्रू चले जाते हैं, एक एंड से निकल के दूसरे एंड के ऊपर। जैसे अगर आप इसी फिगर में अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आपको ये जो शेप दिख रही है, ओके, इफ यू जस्ट सी दीज टू, ये सेम है, यही जो आपको यहां पर दिख रहा है, ये वाला और ये वाला। ओके, दीज आर 2 डिफरेंट व्यूज। ये दोनों अलग अलग व्यूज हैं जो मैंने शो कर रखे हैं। वन इज योर टॉप व्यू, अदर इज योर साइड व्यू। दिस इज योर साइड व्यू, मतलब हम जो जैसे किसी ऑब्जेक्ट को हम साइड से देखते हैं, साइड से देखेंगे तो ये उस तरह का दिखाई देगा। एंड दिस इज द टॉप व्यू विच यू सी द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द टॉप साइड। कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, उसको ऊपर से जब हम देखेंगे तो देखने में ऐसा दिखाई देगा। इफ यू जस्ट सी थ्रू इट, these are the 2 holes, these are the 2 holes which are not through। जो थ्रू नहीं है वो डीप है। मतलब कितना डीप है? these are 25 mm तक वो डीप होल्स हैं। ये वाले जो बीच में आपके ये वाले जो होल्स हैं, ये ऊपर वाले सरफेस से जो ऑब्जेक्ट है उससे 25 mm तक हमारे डीप होल्स हैं। और बीच में जो हमारा बना हुआ है, ये जो दिख रहा है आपको, ये दोबारा से देखो, अगर आप देख रहे होंगे, ये 5 बना हुआ है। दिस इज अगेन यही सिंबल है 5 सिंबल, मतलब डिनोट करता है ये हमारा डायमीटर है। तो जो बीच में जो ये होल बना रखा है, दिस इज ऑफ 15 mm। तो ये जो आपका यहां पर जो साइड व्यू में आपको दिख रहा है, दिस इज ए सर्टेन टनल, एक टनल यू बीच में से जा रही है, विच इज गोइंग थ्रू। जैसे लिखा हो ना THRU, थ्रू, मतलब ये पूरा का पूरा आपके पूरी ऑब्जेक्ट्स के अंदर एक एंड से लेके दूसरे एंड तक कंप्लीट थ्रू है। ओके, सो मतलब मेरा सिर्फ आपको ये ड्राइंग दिखाने का मतलब ये है कि जितनी भी इंफॉर्मेशंस होंगी, यू हैव टू शो ऑन टू दैट ड्राइंग्स ओनली। डायमेंशनिंग आपको करनी पड़ेगी, डायमेंशनिंग में आपको उसको साइज बताने पड़ेंगे, आपकी लोकेशन बतानी पड़ेगी। अब लोकेशन अगर आप इसके अंदर अभी इस ड्राइंग्स में अगर आप देखें, इफ यू जस्ट सी, अब जैसे आपको अभी बताया कि मैंने डायमेंशनिंग से हमारे 2 पर्पज सॉल्व होते हैं, एक साइज और दूसरा हमारा लोकेशन। इफ यू जस्ट सी, दिस इज रिटन एज 2, सो दिस इज द साइज। ये इस ऑब्जेक्ट का ये हमारा साइज है। ओके, और एक और होता है हमारा लोकेशन। अब जैसे इसके अंदर जो होल्स बने हुए हैं, इफ यू जस्ट सी, इट इज 1.25, 1 और 0.75। सो दीज आर द लोकेटिंग, वी आर लोकेटिंग दीज होल्स फ्रॉम सर्टन एंड। हम एक एंड से उन होल्स को हम लोकेट कर रहे हैं। ओके, सो वी आर लोकेटिंग दीज 3 थिंग्स फ्रॉम दिस एंड। सो डायमेंशनिंग हैज, सो अब जब भी आप ये देखें, जब भी आप अपने ड्राइंग को पूरा कर लें, तो हमेशा आप देखें कि क्या आपने पूरी जो ड्राइंग्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स थी हमारी, जो मैकेनिकल ऑब्जेक्ट्स या कोई भी ऑब्जेक्ट्स जो हमारी हैं, क्या आपने उन दोनों के अंदर आपने पूरी ऑब्जेक्ट्स के आपने साइजेस बता दिए हैं। पहली बात, हर एक आपने क्या साइज बता दिया है, उसकी लेंथ, उसकी ब्रेड्थ, उसकी हाइट, जो दूसरे व्यू में दिखाई देगी, क्या आपने सब कुछ बता दिया है। और दूसरी चीज, आपने क्या लोकेशंस बता दी हैं कि वो
एक एंड से, एक सरफेस से, किसी भी एक सरफेस से क्या वो उतने डिस्टेंस के ऊपर, उतनी दूरी के ऊपर क्या लोकेशन सब पता चल गई हैं? व्हेन यू आर कंप्लीट विद ऑल दीज थ्री थिंग, ऑल दीज टू थिंग्स, साइजेस एज वेल एज लोकेशन, जैसे ही आपको ये दोनों चीजें आपको पता चल जाएंगी, सभी चीजें, तब आप ये मानना कि आपकी जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है वो पूरी तरह से आपकी जो है वो कंप्लीट हो गई है। ओके, सो ये ड्राइंग्स बनाने के लिए, तो मैं दोबारा से आपकी उसी पॉइंट पर आता हूं, तो इस चीज के लिए हम डायमेंशनिंग करते हैं। आपकी कंप्लीट ड्राइंग्स कोई भी देखे, आपने ड्राइंग्स पूरी कर दी है, आपका जो कोई भी जो टीचर जिसको चेक कर रहा है, ही गॉट टू नो ईच एंड एवरीथिंग, उसको देखते ही सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए कि ये इसकी शेप क्या है, इसके साइजेस क्या है, इसकी लोकेशंस क्या है, एवरीथिंग इज नोन टू हिम। और वो आप किससे बताएंगे? आप लाइन से बताएंगे, नंबर से बताएंगे, सिंबल्स होंगे और कुछ नोट्स होंगे। ओके, नोट्स एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हम हर बार जैसे पीछे मैंने आपको दिखाया था, मैंने THRU थ्रू लिखा हुआ था, DEEP डीप लिखा हुआ था। सो वैसे आप कम से कम इस्तेमाल करेंगे नोट्स का, बट स्टिल इफ यू रिक्वायर दोज नोट्स, तो आप हमेशा उन नोट्स का फॉर द मोर क्लैरिफिकेशंस यू विल ऑलवेज यूज दोज नोट्स। ओके, तो ये एक हिस्सा है डायमेंशनिंग का। दूसरा हिस्सा जो डायमेंशनिंग का वो ये है कि आप जो भी आपकी जो ऑब्जेक्ट है, जो आपने जो ड्राइंग्स में दिखा रखा है, उसके अंदर you will give certain more information, just like you will give certain production things कि वो बनेगा कैसे उसके अंदर। जैसे एक चीज आपको मैंने नहीं दिखाई थी, दिस वी कॉल एज योर बिल ऑफ मटेरियल्स। यू विल ऑलवेज इंडिकेट द बिल ऑफ मटेरियल्स की, जैसे अगर आप वो सिविल के बच्चे हैं, अगर वो सिविल ड्राइंग्स हैं, कोई कोई बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, देन यू विल ऑलवेज शो कि उसके अंदर आपके अंदर द टाइप ऑफ सीमेंट्स यू यूज इट, द टाइप ऑफ मटेरियल व्हिच गोज इनटू इट, उसके अंदर जो स्टील लगा हुआ है उसकी वो माइल्ड स्टील है, वो कास्ट आयरन है, उस स्टील के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो कौन से हैं, वो इस्तेमाल आप बताएंगे। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं तो आप उसके अंदर आप ये बताएंगे कि जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है वो कौन सा है। मशीनिंग अगर आप उस ऑब्जेक्ट की करनी है, आपने टर्निंग करनी है, शेपिंग करनी है, तो मशीन कौन सी इस्तेमाल होगी, लेथ मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके अंदर जब आप उस चीज को इंस्पेक्शन करेंगे तो उसमें ऑब्जेक्ट्स कौन से जाएंगे वो आप बताएंगे। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स हैं तो आप उसके अंदर ये बताएंगे कि उसके अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस लगे हुए हैं, जो कंडक्टर डिवाइसेस लगे हुए हैं, उसका मटेरियल कौन सा है। ओके, उन कंडक्टर्स को बनाने के तरीके कौन से हैं। यू विल ऑलवेज, तो इसी तरह से जो भी आपका फील्ड है, जो भी आपका इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर जिस भी तरह के आपने ऑब्जेक्ट फाइनली बनाना है, वो चीजें आप साइड के अंदर नोट्स में बताएंगे। या अगर आपको लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कहीं पर कुछ कंफ्यूजन हो रहा है किसी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, तो आप ड्राइंग्स के ऊपर भी बता सकते हैं। ओके, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। और इसमें यही चीज का आपने ध्यान रखना है, जैसे ये मैंने आप एक और मैं छोटी सी एक हिस्सा दिखा रहा हूं, जैसे इसमें लिखा रखा है एस ड्रिल्स 2 होल्स। सो एस ड्रिल का मतलब क्या हो गया कि एस ड्रिल इज समथिंग, एक ये जो ड्रिल हमारी इसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर हम ड्रिल का इस्तेमाल करेंगे और विल बी ऑफ 2 होल्स। सो इस तरह की जो इंफॉर्मेशन हैं यू हैव टू ऑलवेज शो ऑन टू योर ड्राइंग्स। जैसे ये आपको मैं दिखाया था आपको ड्राइंग्स का। नाउ द अदर इंपॉर्टेंट थिंग इज योर एरोज। एरोज जो हैं, एरोज कई बार स्टूडेंट छोड़ देते हैं बनाने, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है ड्राइंग्स का, दे डोंट मेक द एरोज। दे थिंक दैट द कि हमने जो लाइंस ड्रॉ कर दी हैं दो आर सफिशिएंट, बट एरोज हैव देयर ओन इंपॉर्टेंस। एरो जो शेप्स होती हैं, if you just see, this is one arrow which I have shown to it. So this is one thing which you will always make. आप तो एरोज के हमारे दो चीज होती हैं। इसका फायदा क्या है जो स्टूडेंट्स नहीं बनाते हैं, ये एरोज जो हमेशा एक हमारा एक पॉइंट इंडिकेट करते हैं। जैसे मान लो अभी मैंने आपको एक साइज दिखाया हुआ है, एक एग्जांपल है, इसमें साइज को मैंने दिखा रखा है, तो आपके इसके एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट्स, दीज आर इन पॉइंट्स पर खत्म हो रहे हैं। सो एरोज विल इंडिकेट दोज पॉइंट्स, एरोज विल इंडिकेट दैट दिस इज द पॉइंट।
दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट और दिस इज द एंडिंग पॉइंट, दिस इज द एंडिंग पॉइंट। एक तो ये फायदा है, और एक एरोज का है कि आपने कुछ चीज को, आपने कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स शेप्स हैं और उन शेप्स के अंदर आपको डिफरेंट उसके जो फेसेट्स हैं, अलग अलग चीजें आपको अलग अलग पॉइंट्स पे बतानी, अलग अलग जगह पर बतानी है। सो यू कैन मेक द एरोज एट डिफरेंट पॉइंट्स। जैसे यहां पर आप एरोज बना सकते हैं जस्ट टू शो योर मेन पॉइंट्स। तो नॉर्मली तो हम एरोज का डायमेंशनिंग के अंदर इस्तेमाल करेंगे, लेंथ को बताने के लिए, उसकी शेप्स को बताने के लिए इस्तेमाल करेंगे, बट यू कैन ऑलवेज शो देम टू हैव द डिफरेंट इंपॉर्टेंट थिंग्स, डिफरेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके उसके अंदर बनेंगी। तो एरोज भी कोई ऐसा नहीं है कि आपने सिंपल सा हाथ से बना दिया और बस एक जल्दी सा उसको आपने खत्म कर दिया। एरोज को भी अगर आप एक बार आपने बनाना सीख लिया, देन द होल योर ड्राइंग्स गोज वेल। तो जैसे थोड़ा सा आपको बता रखा है मैंने, दिस आर नॉर्मली यू विल मेक ऑफ 3 mm, 3 mm की उसकी आप उसकी लेंथ लेंगे और 15 to 90 डिग्रीज के बीच में उसका आप एंगल रखेंगे, और नॉर्मली आप क्लोज्ड और फिल्ड एरोज का ही इस्तेमाल करेंगे। आपको दोनों तरीके के मैंने बता रखे हैं, ओपन एंड है, आपका क्लोज्ड एंड है, और फिल्ड भी है, लेकिन आप क्लोज्ड और फिल्ड एरोज का ही इस्तेमाल करेंगे। ओके, now I'm basically the time is I think running out, so I've given you the brief introduction ताकि आपका इंटरेस्ट बने ड्राइंग्स के अंदर। और बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट्स है ड्राइंग्स को करने के लिए। तो जैसे जैसे आप सीखते चलेंगे, ये कुछ कुछ चीजें आपके दिमाग में हैं, तो इसको आप शुरू से इसको ध्यान से देखेंगे, देन यू कैन मेक द ऑलवेज द ड्राइंग्स। तो सबसे पहले जब भी आप अपनी क्लास के अंदर आए, तो कुछ चीजें जो आपने हमेशा ये करनी है, जब भी आप अपना ड्राइंग्स बोर्ड के ऊपर अपनी ड्राइंग शीट्स को लगाएं, तो यू जस्ट क्लीन योर ऑल द थिंग्स। सबसे पहले आपने सब कुछ साफ करना है। वो प्रॉब्लम क्या होती है, कई बार बच्चे साफ नहीं करते हैं, सो देयर आर स्मज मार्क्स। जो आपका ड्राइंग बोर्ड रहेगा, जो वुडन का रहेगा ड्राइंग बोर्ड, अगर वो साफ नहीं होगा तो जब आप पेंसिल को जब मूव करेंगे, सो यू हैव द किंकर्स, आपकी स्ट्रेट लाइंस नहीं बनेंगी। तो सबसे पहले अपने ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, अपना ड्राइंग बोर्ड्स, यू हैव टू क्लीन द ड्राइंग बोर्ड्स, द फर्स्ट थिंग। सेकेंड, आप अपने ड्राइंग शीट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से आप फिक्स अप करेंगे विद द थंब पेन्स और द क्लैंपिंग बोर्ड्स। आपकी क्लैंप बोर्ड्स आती हैं या थंब पेन से आप, वो एक बार अगर आप, उसकी दिक्कत क्या होती है, कई बार बच्चे ढंग से उसको क्लैंप नहीं करते हैं अपनी ड्राइंग शीट्स को, तो अगर आप काम करते करते अगर एक बार वो शीट आपकी हिल गई, आपका जो ड्राफ्टर जो आपको शुरू में बताया था, जब वो फिक्स रहेगा, वो अपनी जगह पर फिक्स रहेगा, आपकी शीट हिल जाएगी, सो ऑल योर डायमेंशंस विल गो, इट विल चेंज। तो फिक्सिंग बहुत अच्छे से आपने करनी है। इसीलिए ड्राफ्टर को भी अगर आप जब शुरू में आप फिक्स करें, तो आप ध्यान से देखें, जब ड्राफ्टर को अपने ड्राइंग बोर्ड के ऊपर आप फिक्स करते हैं, तो ये आप उसको इंश्योर कर लें कि आपका जो ड्राफ्टर है, जो आपकी जो स्केल्स हैं, वो पूरी ड्राइंग्स के ऊपर आपके मूव कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो बच्चे क्या करते हैं, फटाफट उसको फिक्स कर देते हैं ड्राइंग बोर्ड के ऊपर, बाद में पता चलता है कि आपका जो ड्राफ्टर है वो पूरी एंड के ऊपर नहीं जा रहा है, देन द थिंग्स विल गो, तब आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। ओके, और सब कुछ आप अपनी चीजों को शुरू के अंदर ही अपना इकट्ठा कर लें। नॉर्मली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी पेंसिल्स, जो HB से लेके H2H 3H, वो सब पेंसिल्स आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले आप अपना टाइटल बॉक्स बनाएंगे HB पेंसिल के साथ। अपनी जो भी, अच्छा, एक्चुअल ड्राइंग शुरू करने से पहले आपके दिमाग में क्लैरिटी एक होनी चाहिए कि आप अपनी ड्राइंग्स को कितना बड़ा छोटा बनाएंगे। ड्राइंग्स को आपने अपनी शीट्स के बीच में रखना है, साइड में रखना है, किस तरह से, कहां से, कैसे रखना है, सब कुछ बनाने के बाद देन आफ्टर दैट यू विल स्टार्ट योर ड्राइंग वर्क्स। तो ये कुछ चीजें हैं जो हल्की हल्की मैंने आपको बताई हैं। होपफुली अगर मैं आपके साथ रहूंगा जब हम ड्राइंग अपनी शुरू करेंगे, सो देन यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस व्हिच यू नीड, और कुछ भी आपने पूछना है, आपके टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, सो यू कैन फ्रॉम द डे वन यू शुड स्टार्ट ड्राइंग इट, देन यू विल एंजॉय इट। क्योंकि ड्राइंग्स बनाना एक बहुत ही मजेदार चीज होती है। जैसे आप उसकी ड्राइंग्स बनाएंगे, यू कैन एक्सप्रेस योर व्यूज टू इट, एंड दिस इज द वन सब्जेक्ट यू विल रिमेंबर इन योर होल लाइफ। जब भी आप किसी चीज को देखेंगे, उसको आप ऑब्जर्व करेंगे एंड यू विल एंजॉय इट। Fine. This completes my brief lectures to the engineering drawings.
hopefully you can ask any questions in your, if you can ask in your comments, comment section के अंदर आपके जो भी questions होंगे, I will love to reply them. Fine. So thank you all the students for all the best for all your classes. Hope we will meet soon. Physically हम जल्दी से मिलेंगे and we can cover up all these topics. Thank you.